Hallelujah. हालेलुया। Praise the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, "Is not my word like fire?" क्या मेरा वचन आग के जैसे नहीं? Yes, God's word is like a consuming fire. हाँ, परमेश्वर का वचन तो भस्म करने वाली आग के जैसे It will है। break every power of Satan. ये तो शैतान की हर एक सामर्थ को तोड़ देता है Yes, it will break every rock into pieces. और ये हर एक चट्टान को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े That कर is देता है। that is the power of the word of God. और यही तो परमेश्वर के वचन की सामर्थ है। God wants every one of us to be filled with the fire of God. परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आग से भर जाए। My friend, unless you have the anointing of the Holy Spirit, मेरे दोस्तों, जब तक कि आप में पवित्र आत्मा का अभिषेक ना हो, unless the power of God be released in your life, जब तक कि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में खोली न जाए, we cannot see the fire of God in our life. हम परमेश्वर की आग को अपने जीवन में नहीं देख सकते। Every believer should be filled with the fire of God. हर एक विश्वासी को परमेश्वर की आग से भर जाना चाहिए। Unless and until we are not filled with the fire of God, जब तक कि हम परमेश्वर की आग से नहीं भरते हैं, God cannot use us. परमेश्वर हमारा उपयोग नहीं कर सकते। Everyone, हर एक व्यक्ति, that is the purpose of God, that everyone should burn with the fire of God. यही तो परमेश्वर का उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आग से जलता चला जाए। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, Yes, even Moses, when he went to the burning bush, जब मूसा उस जलती हुई झाड़ी के पास गया, oh, he was filled with the fire of God. वो तो परमेश्वर की आग से भर गया था। The same fire which was in the heart of Moses will also burn in your life. और वही आग जो कि मूसा के हृदय में थी, वो आपके जीवन में भी जलेगी। This morning we have to see how to keep the fire burning. आज हमें देखना है कि कैसे इस आग को हम ऐसे प्रज्वलित रख सकते हैं। Is it possible to keep the fire burning every day in our life? क्या ये संभव है कि हम हर दिन अपने जीवन में इस आग को ऐसे प्रज्वलित रखें? Because the storms of life come to everybody. क्योंकि जीवन के तूफान तो हर एक की जिंदगी में आते हैं। Everybody has challenges and all kinds of problems in our life. हर एक के जीवन में चुनौतियां और हर तरह की समस्याएं होती But हैं। Jesus said, "Be of good cheer. लेकिन यीशु ने कहा, धाड़स बांधो, I have overcome the world." मैंने संसार को जीत लिया Yes, है। every believer has challenges, but God is an overcomer. हर एक विश्वासी की चुनौती होती है, लेकिन परमेश्वर तो जयवंत हैं। Let us turn to 2 Timothy आइए हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस chapter 1, अध्याय 1 verses 5 and 6. वचन 5 और 6। When I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। It is our job to keep the fire burning in our hearts. ये तो हमारा काम है कि हम उस आग को अपने हृदय में प्रज्वलित रखें। You have to kindle the fire of God in your life. आपको अपने जीवन में परमेश्वर की आग को प्रज्वलित करना है। Like you kindle the natural fire, जैसे कि आप इस स्वाभाविक आग को जलाते हैं, there is an art of kindling the light of the God's fire in our life. तो निश्चय एक ऐसी बात है कि अपने जीवन में परमेश्वर की आग को प्रज्वलित करें। There are many ways of keeping the fire burning in our life. हमारे जीवन में आग को प्रज्वलित रखने के बहुत से तरीके हैं। We have to keep the fire burning. हमें इस आग को प्रज्वलित रखना है। How do you do it? हम इसे कैसे करते हैं? How do you know that the fire is going down in your life? आप कैसे जानते हैं कि आपके जीवन में यह आग तो ऐसे कम होती जा रही है? When you do not stir the gift, as it says in Timothy, you have to stir the gift which is in you. और देखिए, जैसे कि तिमोथियस में ये कहा है कि तुम्हारे अंदर जो वरदान रखे गए हैं उसे तुम प्रोत्साहित करो, प्रज्वलित करो। Yes,
2 Timothy 1:7 it says, God has not given you the spirit of fear, but power, love and of sound mind. दूसरा तीमुथियुस 1:7 कहता है कि परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं परंतु प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा दी है। When you know, when you are bold, you know the fire is burning in your heart. जब आप बहुत ही साहसी होते हैं तो आप जानते हैं कि आपके हृदय में यह आग प्रज्वलित है। The fire in your life overcomes all your concerns in your life. आपके जीवन में जो आग है वो आपके जीवन की हर एक परिस्थिति और सारी चिंताओं के ऊपर प्रबल होती You है। will say, I can do it, I can overcome it. आप ये कहेंगे कि मैं इसे कर सकता हूं, मैं इस पर जयवंत हो सकता हूं। You say, what will happen to me? आप ये कहेंगे कि मेरे साथ क्या होगा। But God will overcome every situation, every circumstances in your life. और मेरे साथ जो भी होगा, मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर मुझे जयवंत बनाएंगे। Verses 8, let us read verses 8. It says, Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but share with me in the suffering for the gospel according to the power of God. वचन 8 पढ़ते, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। What happened to Peter? और पतरस के साथ क्या हुआ? He denied Jesus 3 times. उसने यीशु का 3 बार इनकार किया। But when the fire of the Holy Spirit came upon his life, लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके जीवन पर आई, oh, on the day of Pentecost, पेंटिकोस्ट के दिन he stood before everybody वो सभी लोगों के सामने खड़ा हुआ and he started preaching the word of God. और उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार शुरू किया। There is always going to be a picture of you before the fire of God. निश्चय ही परमेश्वर की आग के सामने आप अपनी तस्वीर रखिए, आप अपने आप को रखिए। Before the fire comes into your life, you may be a very timid person. उस आग को आपके जीवन में आने के पहले तो आप शायद बहुत ही डरपोक व्यक्ति थे। You might even deny the Lord. शायद आपने प्रभु का इनकार भी किया But होगा। when the fire comes in your life, लेकिन जब वो आग आपके जीवन में आई you are bold. तो आप साहसी हो गए। Let us not compromise and accept the things of the world. और आइए अभी हम संसार की इन बातों के साथ में समझौता करके उसे स्वीकार न करें। If you have the fire, you will be a radical person. You will be a revolutionary person. अगर आप में ये आग है तो आप निश्चय ही बहुत ही प्रभावी व्यक्ति होंगे, क्रांतिकारी व्यक्ति होंगे। People may call you crazy शायद लोग आपको पागल कहें because you are filled with the power of God and the fire of God. क्योंकि आप परमेश्वर की सामर्थ से और उसकी आग से भरे हुए हैं। There may be times of persecution in your life. शायद आपके जीवन में सताव का भी समय रहा There will होगा। be times of suffering in your life. आपके जीवन में दुख उठाने का भी समय रहा होगा। But when you have the fire of God, लेकिन जब आप में परमेश्वर की आग होती है you will be a bold person. तो आप बहुत ही साहसी व्यक्ति होते हैं। What happened when Peter and John healed the paralytic? और जब पतरस और यूहन्ना ने उस झोले के मारे व्यक्ति को चंगाई दी तब क्या हुआ? The high priest and the Sadducees and the Pharisees started persecuting him. तो जो महायाजक थे, जो सदुकी थे, जो शास्त्री थे, फरीसी थे, वो उसे सताने लग गए। But because of the anointing and the fire of God which was upon their life, लेकिन उनके जीवन के ऊपर जो अभिषेक था और परमेश्वर की आग थी उसके कारण they spoke the world with boldness. उन्होंने बड़े साहस से उन्होंने पूरे संसार के सामने कहा। They said, the same Jesus whom you persecuted is the same Jesus who's doing this miracle in his name. और उन्होंने कहा जिस यीशु को तुमने सताया था वही यीशु ये चमत्कार कर रहा है अपने नाम में। You're going to have a revival in your own house, my friend. मेरे दोस्तों, आप अपने घर में बड़ी जागृति पाएंगे। You're going to turn the world upside down around your neighborhood. आप अपने आस पड़ोस में पूरे संसार को उथल पुथल कर देंगे। When are you going to do it? आप इसे कब करेंगे? When the fire of God comes upon your life. जब परमेश्वर की आग आपके जीवन पर आती है। All the timidness in your life will leave. आपके जीवन का सारा डर भाग जाएगा। You'll be bold like a lion. आप सिंह के जैसे साहसी हो जाएंगे। Yes, that is what it says in Proverbs. और यही तो नीति वचन में कहता The है righteous are bold like a lion. कि जो धर्मी जन है वो तो सिंह के समान साहसी होते When the हैं। righteousness of God comes upon your life, जब परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन पर आती है oh, your character will change. तो आपका चरित्र बदल Your जाएगा, life will change. आपका जीवन बदल जाएगा, Everything in your life will change. आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, Because you have the boldness of God. क्योंकि आप में परमेश्वर का साहस होगा। Yes, God has not given you a spirit of fear, but
power, and love, and of sound mind. परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया, लेकिन प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा दी है। Yes, Satan will not allow you to have freedom in your life, शैतान आपको अपने जीवन में आजादी रखने नहीं देगा, but God has given you the authority and the fire in your life. लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको अधिकार और आग दी है। Yes, every time you do, He'll resist that supernatural in your life. और जब कभी वो ऐसा करेंगे, वो आपके जीवन में इस तरह के अलौकिक काम करते But रहेंगे। it is according to the fire which is in your life. लेकिन ये उस आग के अनुसार होगी जो कि आपके जीवन में है। Whether you're going to prevail against Satan or you're going to succumb under the temptation of Satan. क्या आप शैतान के ऊपर प्रबल होंगे या फिर शैतान के सामने परिस्थिति में आप हार जाएंगे? The power of God will fill over your life. परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन को भर देगी। No, even around you, there will be people who will want to put the fire out of your life. देखिए, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो आपके जीवन से इस आग को बुझा देना चाहेंगे। Do not allow the people to put the fire out of your life. लोगों को आप अपने जीवन से इस आग को ऐसे बुझाने न दें। Stir up the flame. आप उस आग को और प्रज्वलित करें। You know, in the natural realm, स्वाभाविक क्षेत्र में sometimes the fire goes down. और कई बार जो आग है वो नीचे कम होती जाती है। What do they do? तो वो क्या करते They हैं? kindle the fire and they put more wood so the fire will burn again. तो वो क्या करते हैं? वो वहां पर उस आग को प्रज्वलित करते, उसके अंदर और लकड़ियां डालते ताकि आग और भड़कती In the चली जाए। same way, in the spiritual realm, उसी तरह से आत्मिक क्षेत्र में you can kindle the fire in your life आप अपने जीवन में इस आग को प्रज्वलित कर सकते हैं। and keep the fire going all day in your life. आप अपने पूरे जीवन में, पूरे दिन भर आप उस आग को प्रज्वलित रखिए। You have the inner fire lit by the Holy Spirit. आपके अंदर में ये जो आग है, ये तो पवित्र आत्मा ने लगाई है। This fire helps you in purifying your life and transforming your life and changing your life. और ये आग आपकी मदद करती है कि आपके जीवन को शुद्ध करे, आपके जीवन को बदलते चले जाए, इसे शुद्ध करते चले It is जाए। the fire which makes your vessel a vessel of honor ये आग ही है जो आपके पात्र को आदर का पात्र बनाती and है makes it sanctified and meet for the master's use. और इसे शुद्ध करती है और स्वामी के उपयोग के लिए तैयार करती The है। Lord comes with fire and all the impurities in your life are taken away from your life. परमेश्वर उस आग के साथ में आते हैं और आपके जीवन की हर एक अशुद्धता उसमें से निकाल लेते हैं। Without the fire of God, और परमेश्वर की आग के बिना you even do not know there is impurities in your life. आप ये भी नहीं जानते हैं कि आपके जीवन में अशुद्धता है। You need the fire when the Lord deals with your life. जब परमेश्वर आपके जीवन में व्यवहार करते हैं तो आपको उस आग की जरूरत है। Let us not allow any sin to come into our life. आइए हमारे जीवन में हम किसी भी पाप को आने की अनुमति न दें। Sin should be removed from our life so that the fire of God will burn upon our life. पाप हमारे जीवन से दूर किए जाए ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की आग ऐसी जलती रहे। I want to tell you the impurities will be removed by the fire of God. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अशुद्धता है वो तो परमेश्वर की आग के द्वारा हटा दी जाएगी। This morning I want to exhort you, my friend. मेरे दोस्तों, आज सुबह मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। When you do wrong, जब आप गलत करते हैं the Spirit of God will convict you in your heart तो परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में आपको कायल करेगा and tell you that the fire of God is slowly ebbing down. और ये आपको बताएगा कि परमेश्वर की जो आग है वो धीरे धीरे घटती जा रही It है। is time for us to stir up the fire inside our life. और ये समय है हमारे लिए कि हम अपने जीवन में, अपने अंदर में उस आग को भड़काते चले जाए, प्रज्वलित करें। As long as you have the fire, the devil cannot touch you. जब तक कि आप में ये आग है, ये शैतान आपको कभी नहीं छू पाएगा It will not be able to come near you. और वो आपके करीब नहीं आ पाएगा। The fire is the safest place for you. और ये जो आग है ये आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। The fire was the safest place for Shadrach, Meshach and Abednego. और जो आग है वो तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। When the soldiers threw them inside, जब सिपाहियों ने उन्हें अंदर फेंक दिया they were burnt by the fire. और वो सिपाही ही आग से झुलस कर मर गए। But when they went into the fire,
all the bonds were removed from their life and nothing was hurting them. और जब वो आग में चले गए तो उनके बंधन जो थे वो तो खुल गए, टूट गए Yeah. और उनके जीवन में कोई हानि नहीं For a हुई। child of God, परमेश्वर की संतान के लिए the fire is the safest place. आग तो सबसे सुरक्षित जगह है। He'll baptize you with fire and the Holy Spirit. वो तो आपको आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। That is what it says in Acts of the Apostles. और यही तो प्रेरितों के काम में कहा गया है। Jesus is not only our Savior, यीशु केवल हमारे उद्धारक ही नहीं He है, is also the baptizer of you with fire. और वो तो आपको आग से बपतिस्मा देने वाले हैं। Why does He want to come to baptize you? वो आपको बपतिस्मा देने के लिए क्यों आना चाहते हैं? Because He wants you to live a life of victory and power. क्योंकि वो चाहते हैं कि आप विजय और सामर्थ का जीवन जिएं। Fire is the supernatural help in your life. ये जो आग है ये आपके जीवन में अलौकिक मदद है। It is the power which breaks the power of sin in your life. ये तो ऐसी सामर्थ है जो आपके जीवन में पाप की शक्ति को तोड़ देती It है। is the power which gives you victory over your flesh and the world. और यही तो वो सामर्थ है जो आपको अपने शरीर के ऊपर और इस संसार के ऊपर विजय The देती है। fire will give you all the help which needs to overcome every situations in your life. और यही वो आग है जो आपके जीवन की हर एक परिस्थिति पर जयवंत होने के लिए आपकी मदद करती है। The fire of God, the fire of heaven और परमेश्वर की आग, स्वर्ग की आग, will take you to places. ये आपको अलग अलग जगह पर लेकर जाएगी। Yes, it will take you to more supernatural realms in your life. ये तो आपके जीवन में आपको और भी अलौकिक क्षेत्र में लेकर जाएगी। The fire will come out and burn out all the chaos and fear of man and things that hold you back. और ये आग जो है वो तो आपको मनुष्य की जितनी भी गड़बड़ियां हैं, जो सारी रोके, जो बातें आपको रोके रखती हैं, इन सब को भस्म कर देती है। The most difficult people to deal with are very religious and ritualistic people. जिन लोगों के साथ में व्यवहार करना सबसे मुश्किल होता है वो तो बहुत ही धार्मिक और बहुत ही विधिवत वाले लोग होते हैं। You know, Jesus in his ministry, he rebuked the Sadducees and the Pharisees. जानते हैं यीशु ने अपनी सेवकाई में उसने फरीसियों और शास्त्रियों को डांटा, They put people with all kinds of bondage. क्योंकि वो तो लोगों को हर तरह के बंधन में रखते थे। Jesus was against all ritualistic practice. और यीशु तो इन सारे विधिवत जो काम है, जो पाबंदियां, उसके विरुद्ध में थे। He wanted them to have the fire of God in their life. वो चाहते थे कि परमेश्वर की आग उनके जीवन में हो। Yes, God today wants each and every believer to be baptized in the fire of God. और आज परमेश्वर यही चाहते हैं कि हर एक विश्वासी परमेश्वर की आग में बपतिस्मा पाए। Jesus said, my yoke is light, यीशु ने कहा मेरा जुआ हल्का है my burden is light. और मेरा जो बोझ है ये हल्का है, सहज है। Jesus will lift all your burden from your life. यीशु आपके जीवन से हर एक बोझ को दूर करेंगे। When people come out of the world and from sin, जब लोग संसार से और पाप से बाहर आते हैं sometimes they come into religious, ritualistic practices. तो कई बार वो तो केवल धार्मिक विधियों में आ जाते हैं। But God wants us to move from religion to life and into power. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम धर्म से निकलकर, हम यानी आस्था से निकलकर सामर्थ में आ जाए, उसके Do not जीवन be में आए। bound by tradition. आप परंपरा में ऐसे बंधे हुए मत रहिए। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता the है letter kills, जो शब्द है ये तो मारता है, but the spirit gives life. लेकिन आत्मा जीवन देती Yes, है। when the fire comes, you will be walking in the spirit of life in you. जब आग आती है तो आप अपने अंदर में जीवन की आत्मा के साथ में चलते हैं। Your focus should be on the kingdom of God. आपका लक्ष्य, आपका गौर तो केवल परमेश्वर के राज्य पर हो। You want the fire now in your life, क्या आप अभी अपने जीवन में आग चाहते हैं, or you want the fire later in your life? या फिर आप अपने जीवन में आग जो है वो बाद में चाहते हैं? Yes. When you have the fire now जब अभी आप में आग होती है at the judgment seat, तो उस न्याय के सिंहासन के सामने when God will burn everything in your life, you may just escape going to hellfire. तो पर जब परमेश्वर आपके जीवन की हर एक बातों को भस्म करके जला कर देखेंगे तो आप वहां पर नरक की आग से बचाई जाएंगे। What kind of foundation you are having? आपकी बुनियाद किस तरह की है? Is it hay and stone, क्या- or is it silver or gold? क्या ये घास फूस और ऐसे पत्थर, ये ऐसी जो ये लकड़ी की है, या फिर ये सोने और चांदी Yes, की है? if it is wood and hay, it will be burnt and only you will go in. अगर ये केवल लकड़ी या भूसे की है तो ये जल जाएगा और आप तो नरक में चले जाएंगे।
each of your work will be clear on the day of judgment. न्याय के दिन आपका हर एक काम बहुत ही शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। Yes, the fire will test your life. आप ये आग आपके जीवन को परखेगी। Yes, what kind of fire you want in your life? आप अपने जीवन में किस तरह की आग चाहते हैं? This morning God wants you to be filled with the fire of God. आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आग से भर जाएं। That is why I am preaching the gospel to you. और इसीलिए मैं आपको सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ। There is a heaven to go and a hell to avoid. जाने के लिए निश्चय एक स्वर्ग है और टालने के लिए निश्चय ही हमें नरक से बचना है। A humble man will get what he deserves. जो नम्र व्यक्ति है वो जिस लायक है उसे वही मिलता है। Yes, God will give His mercy and love on a humble person. परमेश्वर जो है वो तो अपनी दया, अपना प्रेम उस नम्र व्यक्ति पर उंडेलते हैं। Many people who are baptized with the Holy Spirit, बहुत से लोग जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हैं, they don't have the power and the fire of God उनमें परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की आग नहीं है, because they live an unclean life. क्योंकि वो तो अशुद्ध जीवन जीते हैं। Because of that, the Holy Spirit fire and the power of God is not seen upon their life. और इसके कारण पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में नहीं देखी जाती है। But God wants you to be baptized with power and fire. परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी सामर्थ और उसकी आग से बपतिस्मा पाएं। Let us move from the blessing to power. आइए हम आशीष से आगे बढ़कर सामर्थ में आ I जाएं। pray this morning that each and every one of you will be burnt with the fire of God and all the impurities in your life will leave you. और मेरी प्रार्थना आपके लिए यही है कि परमेश्वर की आग जो है वो तो आपके अंदर के हर एक अशुद्धता को जला दे और परमेश्वर की आग आप में बनी रहे। And the fire of the word of God और परमेश्वर के वचन की आग will cleanse you from all unrighteousness ये तो आपको हर एक अधर्म से शुद्ध करेगी and make you a vessel of honor this morning. और आज वो आपको आदर का पात्र बनाएगी। Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and we praise you and we bless you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, धन्य कहते हैं। Lord, I believe that the fire of God right now is touching the hearts of people. परमेश्वर में विश्वास करता हूँ कि अभी इस समय परमेश्वर की आग लोगों के हृदय को स्पर्श कर रही है। Every uncleanness in their life, इनके जीवन की हर एक अशुद्धता, every sin of bondage in their life इनके जीवन में बंधन के हर एक पाप may be burnt by the fire of God परमेश्वर की आग के द्वारा जला दिए जाएं। and release them and make them pure and holy in your presence आप इन्हें आजाद कीजिए और ये आपकी उपस्थिति में पवित्र और शुद्ध हो जाएं। and make them a vessel of honor in their life और इनके जीवन में आप इन्हें आदर का पात्र बनाइए and let them glorify you every day and in every walk of their life. और ये आपको हर एक दिन और अपने जीवन के हर एक दिन के चलने में आपको महिमा दे। We thank you and we praise you and we bless you. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके वो धन्य कहते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते If हैं। God has blessed you, अगर परमेश्वर ने आपको आशीष if दी the है, fire of God has touched you this morning, अगर आज परमेश्वर की आग ने आपको छू लिया है, you can call us in the WhatsApp आप हमें फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं and tell us that you have been blessed with this word. और आप हमें बताइए कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। If you have any need in your life, आपके जीवन में अगर कोई जरूरत है our numbers before the screen, तो स्क्रीन पर अभी हमारा नंबर आ रहा है। our prayer warriors are always praying for you. हमारे प्रार्थना योद्धा हमेशा आपके लिए प्रार्थना कर रहे You हैं। can call us anytime. आप किसी भी समय हमें फोन कर सकते हैं। God's anointing will be upon your life. परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन पर होगा। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन। To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all through life's journey, from earth to glory. All I ask, to be like Him, to be like Jesus.